So, Bacha Party, good morning, you all. Hope that you are again ready. Ready, na? So, till now, what we people have studied in accountancy, that part 1, all chapters, and part 2, whatever chapters we have studied so far. Basically, it is of Videshi Nama Paddhati. Videshi means that the Nama Paddhati or system. Paddhati means system. Nama means accountancy. The system operated in other countries. That if you have remembered that very first chapter we have studied that the presently what double entry accounting system we people are studying or using in our country, that is being developed or invented by Luca Pacioli, a monk belonging from Italy. Have you remembered this thing? Very first session we have discussed about this, that the accounting system what presently we people are using here, that is known as double entry accounting system, is being developed by a monk, Italian monk, Luca Pacioli, in the year 1494. So almost over a period of 500 plus years, that system is being still in use. That system what we people studied is double entry accounting system, is a Videshi Nama Paddhati, Videshi, not belonging from our own country. But the system of accounting developed by Indian subcontinent, that is South Asia region countries, used since thousands of years even, is a Deshi Nama system, Deshi Nama Paddhati. The method structurally different, otherwise the rules regulations almost same. That means debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit the expenses and losses, credit the incomes and gains. So structurally this may differ from the double entry accounting system, but the rules regulations used over this is almost same. This system is our own system of recording books of accounts. You people might have seen that red color hardbound thread stitched cloth books of accounts in certain shops. देखा है ना वो लाल कपड़े से सिलाई किया हुआ एक हार्ड बाउंड वाला जो बुक रहता है, प्लेन पेजेस रहते हैं, जिसके अंदर जमा उधार साइड सारी चीज़ें दुकान में लगभग लिखी जाती हैं. वी पीपल कंडक्ट चौपड़ा पूजन ऑल्सो एवरी ईयर फॉर दिस पर्पस. लक्ष्मी माता की हम आराधना करके दिवाली के आसपास लाभ पाँचम के दिन या धनतेरस के दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पूजा करते हैं और हमारा न्यू ईयर बिगिन होता है. तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर. Due to legality, this method is not in much use. Due to legality, because of certain acts or laws, the books of accounts of big entrepreneurship must be written as per double entry accounting system only, and hence this method of accounting has a limited use. इस वजह से इस accounting method का use कैसा है, थोड़ा limited है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मेथड यूज होता है. शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन से. तो इंट्रोडक्शन, क्या शुभ नाम है बेटा आपका? भव्या. भव्या इज रीडिंग इंट्रोडक्शन पोर्शन. रीड इट आउट लिटिल लाउड. Introduction. Two methods of writing accounts are fluent. First, double entry system and second, Deshi Nama system. That already we are known कि भाई अकाउंटिंग की दो मेथड है. पहले चैप्टर में ये बात भी हुई थी अपनी. तो दो मेथड है, डबल एंट्री एंड Deshi Nama. Continue. Deshi Nama system is a very old system derived and adopted Very old system. वो जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है ना, कब इन्वेंट हुआ?
1494 में किसने किया? लुका पेसियोली साहब। पर ये मेथड तो उससे भी पुरानी है। कंटिन्यू। In the Indian subcontinent. क्या यूज था ये मेथड? वेयर इट इज बीइंग यूज्ड? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत और उसके आसपास के जो देश हैं ना, साउथ एशिया रीजन हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये मेथड अभी भी बड़े व्यापारी ये मेथड नहीं यूज करते, लीगलिटी है, उनको डबल एंट्री फॉलो करना पड़ेगा। पर आज के तारीख में भी जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे मतलब हाइट में नहीं, छोटे बिजनेसमैन क्या होते हैं, हमने तो बात की थी कल, अच्छे से समझा था, है ना। तो वो लोग आज की तारीख में भी ये लाल कलर के जो सफेद पेज वाले चौपड़े होते हैं, कंटिन्यू। To write accounts, this system is older than double entry system. When it is older than, और कब इसका इन्वेंशन हुआ ना, हिस्ट्री में इसका कोई नोट। There is a good deal of similarity between the two systems from the दोनों सिस्टम में काफी सिमिलरिटी, मतलब रूल्स तो वही के वही। ऐसे नहीं सर मैं डबल एंट्री से अकाउंट बनाऊं और देसी नामा से बनाऊं तो प्रॉफिट अलग आएगा, नहीं बेटा सेम ही आएगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट तो वही है ना। मेथड लिखने की बदलने से आंसर बदलता है कभी? ख्याल है? तो तू डबल एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना या देसी नामा से बना, दोनों से प्रॉफिट लॉस जो पहले में आया वही दूसरे में आएगा, उसमें कोई चेंज होने में, देयर इज ग्रेट डील ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन दिस बोथ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। कंटिन्यू। from the viewpoint of accounting principles. Still, however, because of its specified peculiarities, this system science are characteristics, this method science against that डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री से भी ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। कंटिन्यू। in this system the books are known as wahi and therefore this system वही खाता वही, इस वजह से इसको वही खाता पद्धति भी, वही खाता निकाल जो मेरे बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है, इस वजह से इसे हम वही खाता पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कंटिन्यू। this system is written in the original language. In which language the Desi Nama system accounts are being prepared? Hindi, Gujarati, English or regional? Understand the term. Here some people write that it is written in Gujarati language. No, it's not written in Gujarati. It's written in. So what is difference between regional language and Gujarati language? For Gujarat, the regional language is. For Punjab it is. For Maharashtra it is. Marathi. What this? So you need to justify the place where you are staying. If you are in Punjab, then will be written in Punjabi. Is that clear? So these accounts are written in which language? Regional. In the regional language, the greatest thing about regional language is that तू पढ़ता कोई भी मीडियम में हो, रात को सपने तुझे तेरी रीजनल लैंग्वेज में ही आते हैं। कभी किसी को ऐसा हो मुझे सर इंग्लिश में सपना जब तू ज्यादा खुश होता है या गुस्से में होता है या दुखी होता है, तब रीजनल लैंग्वेज ही तेरे मुंह से निकलेगी। वो अच्छी वाली निकले, खराब वाली निकले, जो वाली निकले, कौन सी लैंग्वेज? जैसे अभी मुझको देख के दिमाग में काफी कुछ आया होगा आ गया, खा जाएगा याद वापस। ओके, सो रीजनल लैंग्वेज में ये अकाउंट्स लिखे जाते हैं। वो उसने अच्छी वाली कुछ सोच लिया मेरे बारे में। सोच बेटा, सोच पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बोलना मत खाली। कंटिन्यू। However, the system is very old. It is a scientific and complete method. चाहे पुरानी मेथड है, बहुत पुरानी, हजारों साल से भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मेथड यूज है, पर फिर भी ये बहुत साइंटिफिक मेथड। कौन? It is very easy to write and understand the It's easy to write account under this method. Now we'll go with some peculiarities, that is characteristics. Peculiarities means what? Characteristics of this kind of accounting system. Thank you very much.
Once again, your good name is? Bhavya Kumawat. Bhavya Kumawat. Now the books that already I have stated. The books are of red color, cloth covered. Stitches are being made, having blank pages usually. Nowadays the line drawn pages are also available. Otherwise, that if you people have remembered that mathematics books used by you guys at a primary level, have you remembered? So, उस तरह की बुक्स इसकी होती है. याद रहेगा ना बुक कैसी होती है इसमें? तो लाल कलर के कपड़े से स्टिच किया हुआ रहता है धागे से, और प्लेन पेजेस मोस्टली, और लाइन ड्रॉन पेजेस भी. आजकल ये जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखा हुआ अंदर दिखेगा. अगर आपने आंखों को थोड़ी तकलीफ दे के लाइंस पे फोकस करोगे तो ये पता चल गया इतना. अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे जाते हैं ना, दिस इज रिटन एज पर इंडियन कैलेंडर. द डेट्स रिटन एज पर इंडियन कैलेंडर. द इंडियन कैलेंडर व्हाट वी पीपल यूज इज ऑफ विक्रम संवत. व्हाट वी यूज? विक्रम संवत. व्हाट इज द डेट ऑफ टुडे? हाँ, 28th January 2016. Have you people understood my question that regarding what I am asking? कौन से कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूं? मैं आज की डेट पूछ रहा हूं. अगर 10th वो अपन बोलते ना आज एकम है, दूज है, तीज है, चौथ है, पांचम है, छठ है, सातम है, आठम है, नौम है, दसम, ऐसा कुछ होता है ना. आज पूनम है सर, पूनम. आज पूनम है. करें साज करें. करो सर, करो. चांदनी रात होगी अभी पूनम. क्या है डेट? यहाँ लिखते हैं. क्या लिखे? क्या लिखे? टुडे डेट एज पर विक्रम संवत. क्या नेट कनेक्टेड नहीं है क्या? नेट तो कनेक्टेड है. सर दबाओ उसको बीच में ऐसा. थोड़ा बहुत आवड़ता है. शायद नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है शायद. ચાલશે. તમે લોકો શોધી લાવજો. મને નથી ખબર. બસ તમે લોકો શોધી લાવશો. આજાન ભાઈ. તો વિક્રમ સંવત. You people are already known that after exactly Deepavali, next day what we are doing? Saal Mubarak, Happy New Year करते हैं ना. So on that day it begins. This Vikram Samvat begins on which day? We Indians are celebrating 8 to 10 times New Year in a year. For example, that we Hindus are usually following that Vikram Samvat calendar. Sindhis are following further after Cheti Chand, that New Year begins. Muslims are following that Hijri or Misri calendar. Meanwhile, Christian calendar begins on 1st January to 31st December. That also we are known about. Baisakhi, that in Punjab is celebrated. Diwali already discussed. Vikram Samvat, bhai mere. Pongal is there for celebrating New Year in South states somewhere. So, एक ही साल में हम लोग कई बार हैप्पी न्यू ईयर एंड वी अकाउंटेंट्स आर सेलिब्रेटिंग फ्रॉम 1st April to 31st March. But accounting purpose here, the books of account written under Desinama system as per Vikram Samvat and which begins on
आसो सुद एकम and so, sorry, I've done committed mistake here, so apologize for that. कार्तक सुद एकम टू आसो वद अमावस। कब शुरू होता है ये साल? कार्तक सुद एकम। The month under Desinama system is divided into 2 equal parts of 15 दिन each. It is called Pakhwadiyu. If you are known about Athwadiyu, you are known. But the group of 2 Athwadiyu is called Pakhwadiyu. The first Pakhwadiyu is called Sud. And the second Pakhwadiyu is called Vad. In Hindi, some people are calling Shukla Paksha and Krishna Paksha. So that 15 days group combining Sud and Vad become 1 month. पहले 15 दिन को हम सूद बोलते हैं, एकम, दूध, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम, आठम, नौम, दसम, एकादशी, 12, 13, 14 और पूनम। फिर वापिस 1 से शुरू होता है, एकम, दूध, तीज, इस तरह से। और अब पूनम नहीं आता है, अब आता है अमावस्या या अमावस। तो पहले 15 दिन, 15वां दिन जो होता है उसको पूनम, फुल मून डे या नाइट क्या बोलेंगे? नाइट, पर हम डे बोलते हैं ना। और दूसरे 15 दिन जो होते हैं वध के। तो दिस इज अबाउट द कैलेंडर यूज्ड nowadays. However, the accounts are written from 1st April to 31st March, but usually it follows the Vikram Samvat. In every books of account under Desinama system, which are kept for recording accounting purposes, first page is kept for the puja or worship of the god in which the businessman believes. जिस भगवान में, देवी देवता में वो मानता है, उस भगवान की पूजा आराधना के लिए हर बुक का पहला पेज, ચોપડા પૂજન ના દિવસે બુક ખોલી દેવામાં આવે છે। ત્યાં લખવામાં આવે છે શ્રી દશામાની જય થજો, શ્રી ગણેશાય નમઃ, ઓમ નમઃ શિવાય, વોટ એવર ઇન ધ દેવી દેવતા દે બિલીવ। સો લખેલું દેખાય છે, લક્ષ્મી માતાજીનું તેજ હજો, દેખાય છે લખેલું એવું ઇન્વર્ટેડ કોમામાં। સો ધેટ દે આર રાઇટિંગ, and the puja is being done before beginning the commencing the new year, and that we are knowing as a Chopra Pujan also, if you are aware about. Usually this is being done on the evening of Dhanteras or Labh Pacham. Dhanteras preceding 2 days ago from the Diwali. Teras, Chaudas and Amavasya is a Diwali, or otherwise sometime exactly 5th day from the Diwali, that is लाभ पांचम। तो उस दिन चौपड़ा पूजन और जिस देवी देवता में वो मानते हैं उनकी पूजा की जाती है। बुक्स में उनका नाम लिखा जाता है, कंकु चोखा छांटा नाखवामां आवे छे અને ભગવાનની આરાધના પૂજા આરતી, છોકરીઓના નામ નથી લઈ રહ્યો, હા, કરવામાં આવે છે। સમજાઈ ગયું આટલું? So this is about page 4 in every book, that whether it is खाता वही और use of word श्री। कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, देख भाई, ए लैंग्वेज कितनी बढ़िया है ये वाली हमारी। हर खाते का नाम लिखने से पहले श्री लिखा जाता है। श्री आफरानु खातू, ख्याल आए? श्री धेनु खातू, हर खाते का नाम लिखने से, क्योंकि श्री इज द वर्ड ऑफ गुड ओमेन। किसी को सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसीलिए इवन लिविंग पर्सन के नाम के आगे तो सी लगाया जाता है, दैट इज मटीरियल मैटर। बट नॉन लिविंग थिंग्स के जब खाते आते हैं, अकाउंट्स आता है, उसके आगे भी श्री कॉम्प्यूटर नु खातू। વસ્તુઓને પણ સન્માન આપો, એવું આપણી આ જે મેથડ છે ને એ શીખવાડે છે। ક્લિયર? तो कोई भी नाम खाते का लिखने से पहले उसको प्रीसीड करना मतलब शुरुआत करना। कैसे किया जाता है? श्री लिख के। આટલામાં બસ, હજુ તો શરૂઆત છે ભાઈ। તો
श्री शब्द का महत्व यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई किसी भी अकाउंट का नाम श्री ब्याज खातु, देखो श्री ब्याज खाते मतलब ब्याज, इंटरेस्ट के आगे भी क्या लगाया, सो दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गुड ओमेन. नाउ द अकाउंट्स आर रिटन अंडर देसीनामा सिस्टम. यूजुअली ब्लैंक पेजेस बुक्स आर कमिंग, और वो जो पेजेस होते हैं ना उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं. यूजुअली इन रोजमेल एंड बैठोमेल 8 फोल्ड्स आर फाउंड. रोजमेल और बैठोमेल की बुक में कितने फोल्ड्स होते हैं हर पेज पे? फोल्ड्स मतलब कॉलम्स बनाने नहीं होते, वो पेज ही कुछ इस तरह का होता है ना कि आपको वो अलग दिखाई पड़ेगा. तो रोजमेल और बैठोमेल के अंदर सड़, गुजराती में सड़ कहेवाय, सड़ पाड़ेला होय छे. सड़ अड़ इज एब्सेंट इन इंग्लिश एंड हेन्स विल कॉल इट ल, सल. बाकी सल नहीं कहेवातुं, शुं कहेवाय छे? सड़. अड़ इज एब्सेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में अड़ नहीं, एनी जगह पर ल वपरातो होय छे. तो ये देखो, ये सर ने अभी ये पेज को फोल्ड किया इस तरह से 8 भाग में. 8 ये कॉलम नहीं ड्रॉ करने होते, 1 2 3 4, पहले 4 फिर 1 2 3 4, इस तरह से टोटल जो रोजमेल है, बैठोमेल है, खाता वही है, उसके अंदर कितने फोल्ड्स होते हैं? कितने? 8 फोल्ड होते हैं. कौन से बुक में 8 फोल्ड होते हैं? रोजमेल, जो रोज हम बनाते हैं वो वाला मेल. क्या मेल? मेड़. रोज मेड़ अड़ छे, पण अड़ इज एब्सेंट इन इंग्लिश एंड हेन्स विल कॉल इट रोजमेल. बाकी खरेखर शब्द शू छे? रोजमेल. बैठो मेड़, रोज बेसीने मेळवणी करीए अने रोजमेल कहेवाय. रोज नहीं बेसू सर हूँ तो, रोज नहीं बेसू तो कई रीते बेस? सर हूँ अठवाडिये बेसीश. बीजा सर हूँ पखवाडिये बेसीश. ना सर हूँ तो महीने बेसीश. तो बैठो मेळ एक ज वार बेसीने आखा महीनानो मेळ तैयार कर नाखे. रोजमेळ एटले रोज बेसे. रोजनु रोज लखी ज देवानुं. सर रोज 10 15 20 ट्रांजेक्शन थाय छे तो रोज लख भाई, केम के हवे तो 20 ट्रांजेक्शन रोजना थता होय ने महीने लखूं तो 30 × 20 will be 600 transaction in a day is quite tough to write. And hence, if you are having more quantum of transaction, then every day you need to write the books of account, and the accounts where it is written. On next page you can see Rojmail is written. That point or topic when will come, we'll discuss about next page. First line you can see Rojmail. But instead of that, every day hardly 1 or 2 transactions are taking place. Then writing books of account every day is not becoming necessary. 1 or 2 transactions means hardly 30, 40, 50 transactions in a month. So for writing 1 or 2 transactions, you are picking out the books of account and writing one entry, and again this becomes laborsome. So instead of writing every day, fix a day in a month or in a pakhwadiyu. On that day, by sitting one time, write down the entire entries for that particular duration, and that manner then when books of accounts are kept, it is called Bethomail. શું કહેવાય એને? That is also coming on the next page. So as we people are recording journals in case of the double entry accounting system, the similar pattern here under Desinama system, the Rojmail or Bethomail is being kept. Instead of journals, in Desinama system, what is being used? Either Rojmail, that recording the accounts daily, usually done by big businessmen having more quantum of transaction, and when the transaction quantum is less, instead of doing at daily basis, એક જગ્યા પર ઠામ થઈને લખવાનું. ઠામ થઈ જવું એટલે જામી જવું. ઠામ થઈ જવું એટલે શું? જામી જવું. You need to understand some Gujarati wordings also. And hence the Bethomail is also called ઠામ mail. If someone is asking you what is the another name of the Bethomail, what is another name of Bethomail? It is also known as ઠામ. Is that clear? So folds are there in Desinama system for recording entries. Clear? In which books the 8 folds are available, 8 cells are available?
8 cells or folds available in which books? Rojmail, Beethoven and Khatabahi. That is ledgers. Khatabahi means what? Ledgers. Usually these books are containing how many folds? 8 folds. And then after there are some books which contain 6 folds also. How many folds are being contained? 6. Usually the Petanodos, which book? Petanodos will have, Peta means subsidiary, Nod means books. Peta means what? Subsidiary. And in Petanodos will have just 6 folds. How many folds Petanodos will have? 6 folds. There are 11 total Petanodos are available. How many Petanodes are available? That is subsidiary book. Under double entry system, we people have studied the subsidiary books are of four types. Under double entry accounting system, we have studied subsidiary books are of 4 types. Goods की subsidiary book, cash की subsidiary book, goods की purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, goods की subsidiary book, cash की cash book, petty cash book, bills की bills receivable book, और जो बच गया वो जो कहीं नहीं आएगा वो जनरल प्रॉपर. So under double entry accounting system there are just 4 types of subsidiary. And here exactly the number of players allowed to play cricket at a time in a team, that number of subsidiary books are available. Clear? How many players are allowed at a time to play in a team? 11. So here only just 11 types of Petanodos are there. That all 11 names are also coming on the next page. You may conclude with that point number 5 on the next page. 225 पे point number 5 दिख रहा है ना? Petanodo. And how many folds or cells are being covered in Petanodo? 6. How that 6 folds are to be made? You will if you will count, it will be exactly 6. Check it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And while you will count, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 cells कौन सी बुक में होते हैं बच्चास? खाताबाही. क्लियर? और 6 फोल्ड सब्सिडरी बुक में यूजुअली 6 फोल्ड होते हैं. Now one need to understand that how the amounts are being written in these books. All ticket માટે In which book 8 folds are there? પૂછવા હતા જવાનું છે. देखिए ऐसा लगता है कि सपोज अभी एक बंदा है यहाँ पे, बोले चलो बच्चों मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, मुकेश सर का पढ़ाना कैंसिल, चलो मैं आज प्रैक्टिस करवाती हूँ डांस की इसकी उसकी. आपको इमीडिएट तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? समझ गए? अच्छा लगा इमीडिएट. लेकिन जब एग्जाम में बैठे होगे ना तो उस दिन आप ये सोचोगे काश वो सर उस दिन पढ़ा रहे थे, मैं डांस की प्रैक्टिस में नहीं जाता ना. तो जो चीजें इमीडिएट आपको प्रभावित करती है ना उससे हमेशा दूर रहो. इमीडिएट जो चीजें प्रभावित करते, हो सकता है कि टाइम बिंग तुझे अच्छा लगे, तेरी सहेली ने तुझे बोला बंक मारते, तूने बंक मारा, क्या मजा आई, घूमने फिरने गए, फलाना ढिकना, पर यही चीज बाद में रुलाएगी तुझे कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, तो आज मैं भी आफरा की तरह लिख रही होती.
સમજના. અને જિંદગીમાં જેટલા કાસ વધે ને, જો ભાઈ યાદ રાખજો, પછી કંકાસ પણ વધે. એટલે જે ટાઈમ પર ભણવાનું છે ને એ ટાઈમ પર ભણી લેજે ભાઈ. समझ रहे हो? वापिस आ जाओ तो फिर. So how the amounts are being written in folds? Solves. How many folds are being used in case of what? आजा रे आजा. आ रहा है. कितने फोल्ड्स होते हैं? खाली समझने के लिए. अभी यहाँ तो बहुत सारे फोल्ड्स है, पर अपन कितने फोल्ड्स ले ले? ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई तक आएगा 8 कि एच पे हो जाएगा? सर 8 तो ये समझ लो कि ये 8 फोल्ड्स हैं. कितने फोल्ड्स हैं ये? 8 फोल्ड्स हैं. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. यहाँ पे हम जाएंगे, गलत जगह चले गए तो बैक हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे. ओके, इसको थोड़ा अपन हो गया ना. एच तक ही होगा ना. एक्चुअली फोल्ड्स होते हैं. अब उसमें लिखा कैसे जाता है वो समझ लिया. समझना चलेगा. अब बोर्ड को मैं फोल्ड नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने ये 8 फोल्ड जो है वो 8 कॉलम होते हैं बच्चों. क्या 8 फोल्ड जो है वो 8 कॉलम होते हैं. એ કલર લખેલું હતું કે કલર કયા કલરના ઇંકથી લખાય છે? રહી ગયું વાંચવાનું કંઈક એવું? રેડ ઇંક लिखा हुआ તો કઈ बुक्स. ચાલો કઈ વાંધો નહીં, આવશે. આપણે रेड इंक थी लखी. तो जो कौन से बुक ऐसे जिसमें 8 फोल्ड? रोज मेल और बैटो मेल और, तो उसमें जो पहले 4 फोल्ड होते हैं ना, कौन से पहले 4, उसको जमा फोल्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? जमा. और दूसरे 4 जो है उसको क्या बोलते हैं? उधार. पहले 4 फोल्ड को जमा बोलते हैं और दूसरे 4 फोल्ड को क्या बोलते हैं? उधार. ये जो दोनों तरफ पहला फोल्ड होता है ना, उसमें अमाउंट लिखा जाता है. दोनों तरफ जो पहला फोल्ड होता है उसमें क्या लिखा जाता है? अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का बिल्डिंग में लेके आया बिजनेस में. कितने रुपए का बिल्डिंग लेके आया? 1 लाख रुपए का बिल्डिंग लेके आया. विवेक जी विवेकतापूर्ण जवाब दीजिए, जनरल एंट्री क्या बनेगी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1. खरीदा कहा कि बिजनेस में लेके आया? बिजनेस कैपिटल. फिर से रिवाइज करो एंट्री को. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख. डेबिट એટલે ઉધાર કે જમા. ક્રેડિટ એટલે ઉધાર કે જમા. ક્રેડિટ એટલે જમા. ઉધાર. I purchased goods on credit. Translate into Gujarati. મેં ઉધાર પર ગુડ્સ માલ સામાન ખરીદ્યું છે, બરાબર ને? ઉધાર પર.
Goods account will be debited. Translate into Gujarati. Goods અમે ખરીદ્યા છે. એ તો પહેલાનું થઈ ગયું ભાઈ. Goods account will be debited. Okay, building account will be debited. Translate into Gujarati. બિલ્ડિંગ એટલે મકાન, ધંધામાં બિલ્ડિંગ લાયા છે. અકાઉન્ટ એટલે ખાતું. So will people understand now that udhar means debit? Remember, udhar means what? Debit. तो एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख. डेबिट. ऐसा हो रहा है कुछ लोगों को, मुझे नहीं है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट. तो देखो पहले अल्लाह भाई अकाउंट्स में इम्पोर्टન્ટ वस्तु अमाउंट है, खबर है ने એટલું તો. આ ડબલ એન્ટ્રી વાળા પહેલા વસ્તુ લખે પછી અમાઉન્ટ લખે છે. આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ કોને આલવાનું? અમાઉન્ટ. એટલે પહેલા ખાનામાં શું લખાય? ઉધાર બાજુ પર પહેલા હું લખીશ 1 लाख. एक्चुअली अमाउंट जो है ना, अमाउंट जो है गुजरात में गुजराती में लिखा जाता है, पर आजकल इंग्लिश में अमाउंट लिखना शुरू हो गया. तो मैं इंग्लिश में अमाउंट लिखूंगा 1 लाख. कितना लिखा? 1 लाख. ओलायो. आज ये हॉकी स्टिक મૂકી ને એને શું કહીશું? ઓલાયો. કઈક વસ્તુ આમ પેલું તમે બર્થડે પર કેન્ડલ ફાયર કરો છો ને, આમ સળગાવો છો, પછી ફૂંક માર દો એટલે શું થાય? એ ઓલાયો. શું થયું? Okay. So this hockey stick or J type of symbol is used for separating. Before this hockey stick, the amount is called in rupees, and after this hockey stick, the amount is called paise. Okay. So usually as it is, suppose 150 रुपए ने 25 पैसे हो तो कैसे लिखेंगे? 150, then hockey stick and then 25. Got this? फिर क्या एंट्री क्या बनी भाई? बिल्डिंग टू कैपिटल. तो बिल्डिंग उधार करना है, कैपिटल जमा करना है. बिल्डिंग उधार करना है तो पहले फोल्ड में क्या लिखा जाता है? दोनों तरफ क्या? फिर श्री से शुरू करना है ना. श्री मकान खाते उधार. क्या लिखने का? श्री मकान खाते उधार. अब अगर रोज मेल है तो रोज मेल में डेट ऊपर ही लिखी रहती है, पर बैठो मेल है तो यहाँ डेट भी लिखना पड़ता है. डेट सपोज आज सूद 5 है, सपोज आज क्या है? सूद 5. महीना कौन सा है वो ऊपर लिखा रहेगा. फिर नरेशन लिखना है, शॉर्ट और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड. अब जब नरेशन लिखते हैं ना तो ये जो सेकंड वाला फोल्ड है वो इनर कॉलम बन जाता है. क्या बन जाता है? इनर. तो वापिस यहां लिखेंगे 1 लाख. नरेशन अपन इंग्लिश में लिखेंगे बिल्डिंग ब्रॉड इनटू बिजनेस के बिजनेस. फिर यहां लिखेंगे LF. क्या लिखेंगे? LF लेजर फोलियो नंबर. खाता वही 5 नंबर. और ये तो ब्लैंक रहेगा, LF तो ब्लैंक रहेगा. ओके. और इसके बाद ये जो 3 कॉलम है इसमें लाइन ड्रॉ कर दी जाती है. ये हमने लिखा उधार. अब जमा लिखना. श्री भंडोल खाते. भंडोल मीन्स कैपिटल. एक्चुअली भंडोड़ अड़ो अगेन एनहेंस. गुजराती हो गया ना, गुजरात में गुजराती होगा ना भाई.
और कैसी बात करता है तू? स्टार्टिंग में तो बताया था मैंने तेको। इन विच लैंग्वेज द देसीनामा सिस्टम अकाउंटिंग्स आर रिटेन? रीजनल। एंड व्हाट इज रीजनल लैंग्वेज ऑफ गुजरात? गुजराती। जय गुजरात। वापिस देखो, अमाउंट पहले फोल्ड में क्या लिख लेंगे? अमाउंट। समझ रहे हो? फिर अब इनर कॉलम में वापिस से नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन अपन लिखने से पहले सपोज ये बैठो मेल है तो यहां डेट भी लिखनी पड़ेगी, सूद 5। फिर नरेशन लिखने से पहले ये 2 फोल्ड के अंदर लाइन ड्रॉ किया जाता है। ये इनर कॉलम अमाउंट का बन गया 1 लाख। नरेशन अपन बिल्डिंग ब्रॉड इनटू बिजनेस, और फिर लेजर पेज नंबर, खाता वही 5 और 2 लाइन 3 कॉलम में। So this manner the amounts and the details are being written under Desinama system, either in Roj mail, Baitho mail, Khata Vai, where 8 folds are available. Got this? समझ गए ना अच्छे से? इतना डिटेल में बुक वाला नहीं समझा पाएगा। तो पहले 4 फोल्ड जो होते हैं वो जमा यानी कि उधार लिखा होगा ब्रैकेट में, देख लेना। जमा सॉरी यानी कि डेबिट, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट लिखा होगा। जमा मतलब क्रेडिट, और उधार मतलब मैंने उधार पे गुड्स खरीदा, आई परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, दैट्स डैम ट्रू सेंटेंस। पर वो जो उधार की आप समझ रहे हो ना कि उधार मीन्स क्रेडिट, वो ट्रांजैक्शन का होता है। मैंने चीज खरीदी, पैसा देना बाकी, वो उधार व्यवहार मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वहां पे उधार का क्रेडिट होता है। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड्स ऑफ अकाउंट, जमा दैट इज क्रेडिट, तो मैंने देखो पॉइंट नंबर 6 और 7 दोनों कवर कर लिया इसके अंदर, अगर आप समझ गए हो तो 6, 7 और 8 तीनों 3 कवर कर लिया, और 9 भी आ गया। भाई लैंग्वेज कौन सी यूज की अपनों ने? कितना पॉइंट कवर થઈ ગયા આની અંદર સમજો તમારા, આટલું જ સમજાવવામાં। इंक भी आ गया, इंक भी आ गया, यूजुअली रेड इंक, अब आजकल ब्लू इंक से भी, तो हाँ, अब ब्लू भी चलती है, ब्लैक भी चलती है। यूजुअली अब ब्लू इंक से ही लिखा जा रहा है आजकल। सर रेड से भी लिखा जाता है। रेड से शुरुआत हुई थी, है ना, फिर ब्लैक हो गई, अब ब्लू भी चलती है। એટલે 10 નંબર સુધીના પોઈન્ટ્સ આપણા જે છે ને અહીંયા પતી ગયા। देखो बच्चों, जब अगर कोई आप पढ़ा रहे हो और कोई कॉल करके डिस्टर्ब करे तो क्या करना चाहिए? ऐसे कॉल रिसीव करके उसे सुनाई पड़े इस तरह से कट करना चाहिए, ताकि उसे हर्ट हो कि यार मेरा कॉल इस तरह से काटा, सबको सुना के पब्लिकली, कितना हर्ट हो, बेचारे को अटैक भी आ सकता है। ओके, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। देख, कुछ भी बनना, मेरे जैसा मत बनना, बच्चे गालियां देंगे। तो बोलो अब 6, 7, 8, 9, 10 मुझे डिस्कस करने की जरूरत है भाई? नहीं ना। तो अब अपन जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। नेक्स्ट टॉपिक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेसमैन क्या करता होगा? ट्रांजैक्शन हो, बुक्स ऑफ अकाउंट निकाल कर ना एंट्री लिख के, गुड्स बेचा ले, गुड्स पकड़े, बुक ला, चल एंट्री लिखी रख दिया। फिर दूसरा खरीदने का, खरीद का, चले बुक ला, एंट्री लिखी रख दिया। लाइट बिल भरे, बुक ला, लाइट बिल की एंट्री। ऐसा करता होगा बिजनेसमैन? क्या लगता है तुम्हारे को क्या लगता है? कि पूरे दिन में जो ट्रांजैक्शन हुएंगे
10 मिनट। ये पूरे दिन में जो ट्रांजैक्शन, यहाँ से आगे कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे।